Imagine you just turned 10 years old and today is your birthday. आपके मॉम डैड ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपके फ्रेंड्स को, नेबर्स को, थोड़े बहुत रिलेटिव्स को इनवाइट किया है. Celebration is pretty simple. फरसान, चूड़ा, समोसा, a piece of cake in an aluminium foil plate. And अगर थोड़ा ज्यादा ही lavish पार्टी करनी है तो maybe a little bit of cold drink as well. पार्टी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक चलती है. आप थक जाते हो और आप चले जाते हो सोने के लिए, but you're still very excited. Not because it's your birthday, but because आपको पता है कि कल स्कूल जाना है. And because it's your birthday, you can now wear something informal instead of the school uniform. अब जैसे ही स्कूल पहुंचते हो, you feel like the school celebrity, the class celebrity because you're not wearing a uniform. And instead of studying like you always do, you have a box of chocolate और अपने बेस्ट फ्रेंड को उठाते हो. वो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरे कॉरिडोर में घूमते हो, अलग अलग क्लास में जाते हो, and you make sure that your best friends get 2 chocolates instead of 1 as compared to the others. The feeling is unmatched. You feel extremely special because the teachers are wishing you. You're not getting any negative remarks today. और आप इंतजार करते हो अपने अगले बर्थडे के लिए because you know these days are full of joy and it makes you feel very special. Fast forward to you growing up. You're now a teenager. That means you're in high school. इसका मतलब ये है कि अभी possibilities बढ़ चुके हैं. It's not the traditional old samosa, चूड़ा, फरसान party, but you can actually go out with your friends क्योंकि अब आपके पास permission है and maybe एक 50-100 रुपए as pocket money. You're pretty excited because आपको पहले कभी ऐसा मौका मिला नहीं था कि एक्चुअली मैं बाहर जा सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मे बी वॉच अ मूवी, मे बी गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड ईट अ मील. सो एवरी बर्थडे इज अ न्यू डिस्कवरी वेटिंग टू हैपन, अ न्यू एक्सपीरियंस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसके वजह से आपका टीनेज और स्पेशल हो जाता है. ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट यू आर नाउ ग्रोइंग अप एंड यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल, यू आर फीलिंग न्यू थिंग्स, यू आर मे बी ऑल्सो मीटिंग सम गर्ल्स और गाइज. ऑफ कोर्स भेदभाव नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. आपका टीनेज ऐसे ही निकल जाता है और धीरे धीरे टाइम निकलते निकलते आपको समझ भी नहीं आता है कि स्कूल कब खत्म हो गया एंड इट्स टाइम फॉर कॉलेज. एज यू आर इन college, you realize life is very different than it was back in school. Now people have started looking at you like adults, but it feels good क्योंकि आपको वो चाहिए था. आप रुके हुए थे कि कब मैं बड़ा हो जाऊंगा और कब मैं बोल पाऊंगा that I am not a child anymore, mom. The experiences that you're experiencing every year is just going up and you never know when it's gonna stop. But जैसे जैसे levels बढ़ते जाते हैं, standards बढ़ते जाते हैं, आपका circle बढ़ते जाता है, you realize this is also getting kind of taxing financially. Because now instead of using 50-100 bucks to celebrate your birthday, आपको बाहर जाना पड़ता है. कि पहले तो 50-100 रुपए में काम हो जाता था, लेकिन अब दोस्त ज्यादा है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मेरा इमेज भी मुझे मेंटेन करना है, and I have to make sure that my friends are having a nice time when they're around me. Which is why you go out for days sometimes, you do your night outs, maybe आप concerts attend करते हो, and of course if it's your birthday, you know you have to celebrate it with a bang. नहीं तो सारे दोस्तों को मैं entertain कैसे कर पाऊंगा? But still, it's not all that bad because you've probably started working part time or maybe your pocket money has gone up, so फिर भी life balance हो जाती है क्योंकि अभी भी आप adulthood में गए नहीं हो and everything is a new experience and it feels nice growing up until you finally grown up. Fast forward to your 20s, now birthdays are not exciting anymore, लेकिन birthdays के बारे में सोच के आपको stress आता है. Yeah, the fact that you're growing older, आप बूढ़े होते जा रहे हो, is kind of stressful. Also the fact that you're an adult now और पहले जो 50 लोग आपको wish करते थे, आप गिन के मुश्किल से 5 लोग wish करते हैं. But that is not the only reason. क्योंकि धीरे धीरे बर्थडे का एक्साइटमेंट टर्न हो जाता है एक जबरदस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटी में. यू कैन नॉट गो बैक टू ईटिंग फरसान एंड समोसा विद योर फ्रेंड्स नाउ दैट यू हैव मेंटेन्ड अ स्टैचर एंड इवन योर फ्रेंड्स डू इट, सो नेचुरली आपको भी वैसे ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा. बट दैट इज स्टिल फाइन इफ यू स्टिल हैव सम गुड फ्रेंड्स और आपका कॉलेज का जो ग्रुप है वो फिल्टर आउट होकर निकल चुका है, सो यू डोंट हैव टू इम्प्रेस अदर्स एंड आपकी बोरिंग जिंदगी में वो एक ही दिन आता है सेलिब्रेशन का जब आप थोड़ा पी सकते हो, नाच सकते हो, घूम सकते हो. सो यू स्टिल लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज अल्टीमेटली इट इज सॉर्ट ऑफ अ टाइनी ब्रेक दैट मेक्स यू फील गुड. बट धीरे धीरे हर साल आप ये रियलाइज करते हो कि द जॉय, द एक्साइटमेंट एंड द क्यूरियोसिटी फॉर अ न्यू ईयर धीरे धीरे कम होते जाता है. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रॉनी डिसूजा एंड यू आर वाचिंग रॉनकॉम. आज मेरा बर्थडे है. आई जस्ट टर्न 26 और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्रॉबली 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी मेरा बर्थडे होकर बिकॉज आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो अ लिटिल लेटर. मेरा गला भी थोड़ा खराब है इसलिए मेरी आवाज ऐसे टर्मिनेटर जैसे आ रही है. डोंट वरी, यूजुअली टर्मिनेटर जैसा साउंड नहीं करता हूँ मैं. आई हैव अ प्रीटी नॉर्मल वॉइस. बट टुडे आई वोक अप विद अ वेरी ब्राइट मूड. और बाय द वे पुणे में 4 दिन बाद धूप भी निकली है आज क्योंकि बहुत दिनों से साइक्लोन का तूफान आया हुआ था. सो इट जस्ट फेल्ट लाइक अ वेरी नाइस ब्राइट डे. और इस वीडियो टॉपिक के बारे में मैंने सोच लिया था मेरे बर्थडे से 1 हफ्ते पहले बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दी सेम इमोशंस दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. आई वॉजंट लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे. आई डिडंट मेक एनी प्लान्स एंड आई डिडंट वांट टू इवन थिंक दैट इट्स माई बर्थडे. मुझे बस एक नॉर्मल दिन निकालना था. Why don't birthdays feel the same anymore? Simple explanation, reason number 1, we are getting older.
ऑफ कोर्स टाइम एंड एज एक ऐसी चीज है जिसको कोई फाइट नहीं कर सकता है, जिसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है, एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। सो यस, द फर्स्ट रीजन कुड बी दैट वी आर गेटिंग ओल्डर, और हमको अच्छा नहीं लगता है हर बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग, कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कि मैं मौत के पास जा रहा हूँ। दैट इज द प्रीटी नेचुरल रिस्पॉन्स। बट अगर हम थोड़ा सर्फेस लेवल से नीचे जाते हैं, आई बिलीव दैट इज नॉट द ओनली रीजन, एंड दैट इज नॉट इवन द प्राइमरी रीजन। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे मैंने बताया, बचपन में एक्साइटमेंट होता था, नई चीजें सीखना है, नई चीजें एक्सपीरियंस करना है, हर साल कुछ ना कुछ एक नया लेसन या स्टोरी आप बना रहे हो, आप सीख रहे हो। Now that experience and that story starts diminishing as you grow up, because you can only go up so high and learn so many new things in one lifespan. जो लाइफ के फर्स्ट 15-20 years आप सीखोगे और जो एक्सपीरियंस करोगे, वो सेम चीज आप बाद के 20 years में नहीं एक्सपीरियंस करने वाले हो। Which is why earlier we used to look forward to our birthdays, but now there is nothing to look forward to. The third reason that must have ruined it is materialism. जैसे मैंने मेंशन किया, बचपन में फरसान, समोसा, चूड़ा एंड कोल्ड ड्रिंक से हम लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये सोसाइटी के माया जाल में फंस जाते हैं। कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितनी बड़ी जगह पर जा सकते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कितना बड़ा पार्टी हम थ्रो कर सकते हैं, उसी में हम लोग फंस जाते हैं। बिकॉज माया और मटेरियलिज्म का एक प्रॉब्लम है, यू कैन ओनली गो सो हाई विद द रिसोर्सेज दैट यू हैव। जितने रिसोर्सेज होंगे आप उतना ऊपर जा पाओगे, विच जस्ट मीन्स यू हैव टू कीप गेटिंग मोर रिसोर्सेज एंड कीप गोइंग हायर एंड हायर when it comes to your experience. So instead of it being a joyful celebration, it becomes more of a competition. आपको impress करना है लोगों को, आपको दिखाना है कि आप कितना कुछ कर सकते हो। Celebration से ज़्यादा show off हो जाता है वो, and I've seen a lot of people with a friend circle that they cannot even afford to hang around with. वो लोग उनके साथ जाते हैं, credit card spend करते हैं, loan ले लेते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं, just to be a part of a group that they don't even belong in. एंड एवरी ईयर इट गेट्स मोर एंड मोर टैक्सिंग, क्योंकि आपको पता है कि यार ज्यादा पैसे बड़ा सेलिब्रेशन, तो आप ज्यादा पैसों के पीछे भागते हो, लेकिन ज्यादा पैसों के पीछे भागोगे आपका मेंटल पीस खराब हो जाता है, हैप्पीनेस की वाट लग जाती है, आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, एंड फिर से वो एक बर्थडे का एक दिन आता है जो आप पूरा खर्चा करके पैसे खत्म कर देते हो, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। ये मटीरियलिज्म और शो ऑफ और खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बर्थडेज तो छोड़ दो, शादी में भी ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ लोग खर्च कर देते हैं शादियों में, जस्ट टू शो इट टू पीपल, जस्ट टू इनवाइट 2000 पीपल टू देयर वेडिंग, जिसमें से मुश्किल से 20 ऐसे लोग होंगे वो 2000 लोगों में से जो एक्चुअली ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में केयर करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप ट्रेंड देखोगे, बचपन में बर्थडेज होते थे अराउंड यू, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ डे फॉर यू and about you, it starts to become a day for other people, for the spectators and the viewers, कि आप क्या कर सकते हो उनको दिखाने के लिए। And there comes a point when you just say fuck bro, मुझे ये नहीं करना है। So that was theory number 1, and जरूरी नहीं है कि सब पर वो लागू करे, because we humans are very diverse creatures. We all have different life stories, different experiences, different situations. So that theory was for those people who could actually relate to it. अब जो अगला theory जो मैंने form किया है, that is based on my personal experience and on my personal story. If you're a regular viewer and if you're an old viewer of my channel, आपने एक वीडियो देखा होगा जो relationships के ऊपर मैंने बनाया था, और मैंने अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बारे में उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया है। In high school and college, I was one of those popular kids you can say, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैं काफी एम्बिशियस था, मैं बड़े बड़े गोल्स के बारे में बातें करता था, एंड द फैक्ट दैट कि मैं कोई एक वेल्दी बिजनेस या पावरफुल फैमिली से नहीं आता था मेड इट इवन मोर स्पेशल, जिसके वजह से मेरे से एक्सपेक्टेशंस भी लोगों के बढ़ गए थे। माय सर्कल, माय फ्रेंड्स, उनके सामने एक इमेज क्रिएट हो गया था कि यार रॉनी कुछ करेगा, यंग एज में काम कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन है, आइडियाज है, एम्बिशंस है, ये कुछ उखाड़ेगा, और मेरे में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था दैट यस आई विल डू इट। आई एम जस्ट 19 राइट नाउ, आई ऑलरेडी हैव अ जॉब, आई हैव दिस प्लान लेड आउट, अभी तो बहुत बड़े बड़े चीजें अचीव करनी है मुझे। आई हैड द फायर, आई हैड द ड्राइव, एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि हाँ भाई लाइफ ईजी है, सॉर्टेड है, सब कर लेंगे। आई डोंट नो हाउ पीपल फेल, एंड आई एक्चुअली ट्राइड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, आई ट्राइड ट्राइंग न्यू थिंग्स, समथिंग दैट वाजंट ट्रेडिशनल, समथिंग दैट वाजंट कन्वेंशनल। और मुझे ये तो पता था कि मैं एकेडमिक्स यूज करके कुछ करने नहीं वाला हूँ, बिकॉज आई वाजंट अ साइंस स्टूडेंट, आई वाजंट एन IT स्टूडेंट और एन इंजीनियर। मैं आज ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता था कि उसमें तो कोई स्कोप है नहीं। सो आई हैड टू गो आउट एंड डू डिफरेंट थिंग्स, एंड आई हैड टू गो एंड ट्राई टू प्रूव ऑल ऑफ दीज बिग promises that I've made to others. But things started to change because I wasn't 19 anymore. Fast forward to 7 years later, I'm still trying to fulfill those promises. मेरा प्राइमरी प्रोफेशन जो था, जो फिटनेस इंडस्ट्री में था, वो तो मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, and I'm doing pretty decent at it. But the other things that I've tried, the new businesses, the new venues that I've explored, पिछले 4 साल से मैं लगा हुआ हूँ, and there is no progress. जो 18-19 की उम्र में कॉन्फिडेंस से मैंने बोला था कि मैं फिगर आउट कर लूंगा by the age of 25, I was just proved wrong by life multiple times. और जो भी 3 या 4 बिजनेसेस में रन करने की कोशिश कर रहा था, उसमें से एक तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा because
it wasn't working. The other two include a financial field and the last one is YouTube. YouTube को भी शुरू करके मुझे 4 साल हो गए थे and I was pretty confident that I'm gonna make it. I'm gonna do something. I'll be there one day. कुछ ना कुछ figure out हो जाएगा क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. Why not? I have everything. I can do it. But जैसे जैसे अभी mid-20s पास आ गया, अभी मैं second half of the 20s में आ गया हूँ and I've realized कि जो बड़े promises, ambitions, goal मैंने रखे थे, जो confidence से मैं छाती फुला के चलता था लोगों के सामने कि मैं तो उखाड़ लूंगा कुछ ना कुछ, अभी तक नहीं उखाड़ पाया हूँ. There are people depending on me. There are responsibilities I have to fulfill और मैं अभी तक उतना independent नहीं हो पाया हूँ कि कोई और मेरे पे डिपेंड हो पाए. And it bothers you. It bothers anybody who has certain goals and responsibilities and certain promises and ambitions that they yet have to fulfill. YouTube पर भी मैं पिछले 4 साल से हूँ and you guys can notice कि I haven't actually made it anywhere in these past 4 years. जबकि मैंने सोचा था कि हाँ 1 या 2 साल max to max 3 साल में मैं already कोई बड़ा आदमी बन जाऊंगा, which was not true, and I've come to terms with that this might never work out or this might just be like this forever, but I have no other option than to keep trying. जब 18-19 का था और जो चीज़ें मैंने सोचे थे, जो प्लान्स मेरे दिमाग में थे, वैसे एग्जैक्टली टर्न आउट तो नहीं हुआ. एग्जैक्टली क्या, उसके पास भी मैं नहीं पहुंचा हूँ इतना सा भी. एंड इट्स अ वेरी बिग स्लैप ऑन माई फेस व्हेन रियलिटी हिट्स यू कि भाई इतना आसान नहीं होता है डिफरेंट चीज़ें करना, डिफरेंट फैंटेसीज ट्राई करना, फुलफिल करना अपने एम्बिशंस. इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. यू आर गोना कीप फेलिंग फॉर years and multiple times and there's no guarantee कि ये फेलियर कब खत्म होने वाला है. And I'm telling you this story not because I want to be vulnerable or I want some empathy, sympathy from you guys, ऐसा कुछ नहीं है, but because this is the most authentic piece of reference that I can share with you guys, जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ. मैं अकेला नहीं हूँ जिसके प्लान्स फुलफिल नहीं हुए, जिसके गोल्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर आइडिया वर्क नहीं किए. And given the first theory of how birthday celebrations become more of a responsibility, more of a stressful thing than of a joyful celebration, it makes it even more worse. क्योंकि आपको अब पता है कि जो भी सेलिब्रेशन होगा, जो भी खर्चे होंगे, वो या तो आप करोगे या तो कोई और करेगा, और जो आपको चाहिए नहीं. मुझे नहीं लगता है कि किसी को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या ही कर लिया है, मैंने क्या ही कुछ खास उखाड़ लिया है कि लोग मेरे लिए टाइम निकाले और मेरे ऊपर कुछ भी स्पेंड करे. And which is why birthdays do not feel the same anymore. Notice how I mentioned कि YouTube मैं 4 साल से कर रहा हूँ and I am still not successful at it and there is a possibility कि मैं शायद कभी successful ना हो पाऊँ. But the fact that I'm recording this video right now, editing it for you guys and you're watching it at this moment, doesn't it make you wonder कि साला ये अभी भी क्यों कर रहा है? और मैं अकेला नहीं हूँ. I'm pretty sure आप में से भी कई लोग हैं जो बहुत कुछ चीजें करते वक्त फेल हुए हो, maybe multiple times, maybe for a lot of years, maybe somebody you know who's going through that and they keep trying, they keep going at it. उसके पीछे कोई तो एक unstoppable force होगा that makes us so impractical and unreasonable कि हम लोग continuously वो चीज attempt करते रहते हैं even when we know कि this might never work out. What do you think that is? It's the love for the people who love us. अब ये सब चीजें मैं अपने बर्थडे से कैसे रिलेट कर रहा हूँ. वीडियो का टॉपिक तो ये था कि व्हाई डोंट बर्थडेज फील द सेम एनीमोर, तो मैं ये प्रवचन क्यों देते बैठा हूँ. काफी सिंपल है. पिछले 1 हफ्ते से मेरे दोस्त, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरा भाई, माय गर्लफ्रेंड, वो सब मुझसे एक सवाल पूछता है, रोनी बर्थडे आ रहा है, क्या प्लान करना है? बाहर जाए, डिनर बनाए, केक काटे, कौन सा केक खाएगा, क्या गिफ्ट चाहिए, क्या लाए तेरे लिए, क्या करे? द फैक्ट दैट दीज इंडिविजुअल्स, इनकी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ है, इनका खुद का भी एक स्ट्रगल है, इनका खुद का भी एक स्टोरी है जो ये लोग लिख रहे हैं. इमेजिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने बारे में सोच रहे हो कि लाइफ में कितना सैड लगता है, लाइफ में कितने फेलियर्स है, कितने स्ट्रगल्स है, बर्थडे सेलिब्रेट करने में मजा नहीं आ रहा है. डोंट यू थिंक द पीपल अराउंड यू आल्सो फील द सेम? इवन दे हैव अ सोल ऑफ देयर ओन एंड येट बिकॉज ऑफ शेयर लव फॉर यू वो लोग आकर आपके लिए कुछ करने का डिसाइड करते हैं. एक पूरा इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए कुछ करना चाहता है. रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर इन लाइफ, स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंसेस सही नहीं है, बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, 1 या 2 इंसान तो होंगे ही होंगे जो आपके बारे में सोचते हैं अभी भी. एंड वंस वी फाइनली स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश, हमको रियलाइज होगा द फैक्ट दैट देयर इज समबडी आउट देयर हु स्टिल आस्किंग फॉर मी, ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर मी, दैट इज अ स्पेशल रीजन इनफ फॉर यू टू गो एंड सेलिब्रेट. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर जाओ, पार्टीज करो, एक्स्ट्रावेगेंट कुछ चीजें करो. नहीं, मॉम डैड के साथ बैठकर एक केक भी काट लोगे ना, इट मेक्स देम हैप्पी, इट मीन्स समथिंग टू देम. अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम के 2 मिनट हंस लोगे, that means a lot to them. So when we say that birthdays don't feel the same anymore and I don't want to do it because I feel like that, I am like that, we shouldn't do it for ourselves. We should do it for the people who love us. आज सवेरे से मैं इतने अच्छे मूड में इसलिए था बिकॉज 1 हफ्ते से मैं स्ट्रेस में था. बर्थडे आ रहा है, क्या करूँ, क्यों करूँ, आई डोंट डिजर्व इट, आई डोंट वांट टू डू इट, आई फील वर्थलेस. एंड आज सडनली जब सुबह उठ के मुझे मॉम डैड ने विश किया, मेरे दोस्तों ने विश किया, आई जस्ट रियलाइज्ड कि इतना बर्डन था ही नहीं मेरे सर पे इन द फर्स्ट प्लेस. हम लोगों को चीजें कॉम्प्लिकेट करने की आदत हो चुकी है. इट डज नॉट टेक अ लॉट फॉर अस टू बी कंटेंट. आई नो आई एम जस्ट 26 अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. आई डोंट नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड. अभी बहुत कुछ मुझे देखना है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, ये एक कंक्लूजन पर मैं आ गया हूँ दैट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स
is the relationships that you have. The core essence is very simple. It's not that difficult to understand. I know that birthdays don't feel the same anymore, but they don't have to feel sad or empty. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आज मेरा बर्थडे है एंड कोई स्पेसिफिक प्लान है नहीं क्योंकि वीकडे पे बर्थडे आ गया. सो आई एम जस्ट गोना बी एट होम, डू माय वर्क. आई एम गोना कीप इट प्रीटी सिंपल. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स वाचिंग राइट नाउ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.